हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश कर दिए हैं लास्ट टाइम. नाउ वी आर टेकिंग अप अ न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो मैंने आपसे कहा हम न्यू चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे. अब आज से हम अब नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा और साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा. तो अगर आप बोर्ड पे देखें तो हमने न्यू चैप्टर की बात की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. पहले हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में आप जो वेरियस टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे वो कौन कौन से फील्ड के साथ रिलेटेड हैं. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of those chemical reactions in which electric energy is consumed or produced. आपको अपना ब्रेन फोकस करना है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस की तरफ. हम बात कर रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी रिएक्टेंट को सप्लाई करने पर ही केमिकल रिएक्शन अकर करता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस which when occur electric energy is released. So on one hand I say there are chemical reactions in which electric energy is consumed. On the other hand there are some chemical reactions in which electric energy is produced, released. All such chemical reactions in which electric energy is consumed or produced, all such chemical reactions are called as electrochemical reactions. And the branch of chemistry which deals with the study of electrochemical reactions is called electrochemistry. Or I can say that the branch of chemistry which deals with the study of all those chemical reactions in which electric energy is consumed or produced, that branch of chemistry is called as electrochemistry. तो होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. आप इस पूरे चैप्टर में देखेंगे some topics will be based on chemical reactions in which electric energy is consumed, and some topics will be based on chemical reactions in which electric energy is released, and the study of such chemical reactions is called as electrochemistry. तो होप करता हूं आप नटशेल में अंडरस्टैंड किए होंगे. So I once again repeat that the branch of chemistry which deals with the study of all those chemical reactions in which electric energy is consumed
are produced, that branch of chemistry is called as electrochemistry, and all such chemical reactions are called as electrochemical reactions. It means that electrochemical reactions two types के हुए. How you can say that electrochemical reactions are of two types? क्योंकि in some electrochemical reactions electric energy is consumed, in some electrochemical reactions electric energy is produced. It means electrochemical reactions are of two types. यही ब्रीफ में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी दो टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, और आप देखेंगे कि आप ये सब पहले से ही जानते हैं और इस चैप्टर में इनको काफी डिटेल में आगे स्टडी किया जाएगा. हम तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे हैं. तो पहले थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, I simply say that it is that branch of chemistry which deals with the study of those chemical reactions in which electric energy is consumed or produced. I say that it is that branch of chemistry which deals with the study of those chemical reactions in which electric energy is consumed or produced. And I said earlier, these kind of chemical reactions, these kind means the chemical reactions in which electric energy is consumed or produced. These kind of chemical reactions are called electrochemical reactions. और स्टूडेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो है अकर करती हैं इन द स्पेशल डिवाइसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. Those cells are those devices in which electrochemical reactions occur. Those cells, those devices are called as electrochemical cells. Plenty of electrochemical cells इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे. अब आपके ब्रेन में पॉइंट्स आ रहे होंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. Let us understand that. कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं, मैंने कहा, जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होने का मीनिंग क्या है? केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए वी सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स. Once the electric energy is available to the reactants, then only those reactants react with each other. मैं कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं. तो जब हम रिएक्टेंट्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इट मींस दैट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस केमिकल रिएक्शन में. तो ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस कहेंगे. I say that those electrochemical reactions in which electric energy is consumed, those electrochemical reactions are called as electrolytic reactions. And the phenomena is called as electrolysis. ध्यान से पढ़ रहे हैं आप इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब आप कोई सब्सटेंस लेते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में या फिर स्टूडेंट एक्वस फॉर्म में, उसमें से जब आप करंट को पास करते हैं और करंट को पास करने पर जब वो सब्सटेंस डिकम्पोज करती है, द फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. इसका मतलब कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट को हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करना पड़ा केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी एंड सच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस. द फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हैं, ये जिस स्पेशल सेल के अंदर, डिवाइस के अंदर अकर करती हैं, सच सेल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. आइए बोर्ड पे देखते हैं. आप सबसे पहले स्टूडेंट यहां रिएक्शन पे देखिएगा. बाद में जो मैं समझा रहा हूं वो बोर्ड पे मैंने लिख के रखा होगा. ये हमारे पास NaCl है. बेस पे मैंने F लिखा है. F मीन्स fused. Fused means molten form. I take some solid NaCl and I heat this solid NaCl to its melting point. और ऐसा करने पर NaCl fused form में, molten form में कन्वर्ट हो गया. Then fused form of NaCl में से I pass some electric current. ये इलेक्ट्रिक करंट अब कंज्यूम होगी, रिएक्शन को स्टार्ट करेगी और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से फ्यूज्ड NaCl डिकम्पोज होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनेंगे. होल फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एंड इट विल अकर इन अ स्पेशल सेल कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ऐसा होता है कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में. और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मालूम है आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? हमने जब कहा ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस में क्या हुआ? ऑल दोज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इन दीज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं. जिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी. एंड दोज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप देखेंगे कि उनके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. तो अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू टाइप्स की हैं. कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है. ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं. फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. और ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी. और एग्जांपल मैंने आपको दिया, फ्यूज्ड NaCl पे से इलेक्ट्रिक करंट को पास करना. और सच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. तो आइए इसको बोर्ड से देखते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर टू टाइप्स. ए, in some electrochemical reactions the electric energy is consumed. तो क्या होगा? कहा था मैंने, that is electrical energy is converted into chemical energy. Such chemical reactions are called as electrolytic reactions. Phenomena is called as electrolysis. And these type of reactions occur in electrolytic cells. और एक बहुत कॉमन एग्जांपल, फ्यूज्ड NaCl इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बने. तो ये वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है. तो स्टूडेंट अब सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? इसका रिवर्स. और याद रखिए
ये जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा हो और प्रोड्यूस हो रहा हो, दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लास 11th में अंडरस्टैंड किए थे आप रिडॉक्स रिएक्शंस। ये सब जिन रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। नाउ some electrochemical reactions are also there in which what happens? Electrical energy is released. Electrical energy is released, produced. Actually, आपने देखा होगा हमारी डिवाइसेस में स्टूडेंट सेल्स यूज होते हैं। हम घर में देखते होंगे कई डिवाइसेस में ड्राई सेल यूज होता है, ट्रांजिस्टर में ड्राई सेल यूज होता है, टीवी के रिमोट में ड्राई सेल यूज होता है, वॉल क्लॉक में सेल यूज होता है। उस सेल में क्या होता है? एक स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन अकर करता है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो होती है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन अकर करती है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलती है, जिससे हमारा डिवाइस अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है। इट मीन्स दैट हमारे पास सर्टेन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उनमें ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस अकर करती हैं जिनमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को हम गैल्वेनिक रिएक्शंस कहते हैं और वोल्टाइक रिएक्शंस कहते हैं। और जिन सेल्स के अंदर ये रिएक्शंस अकर करती हैं उनको गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। तो आइए पहले बोर्ड से देखते हैं। सेकंड, इन सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस electric energy is released, that is chemical energy is converted into electric energy. These reactions are known as galvanic or voltaic reactions, and the cells in which these reactions occur are called as galvanic cells or voltaic cells. तो यहां बोलेंगे सर ने जो एग्जाम्पल नहीं लिखी, क्योंकि लंबी लंबी रिएक्शंस हैं। जैसे ही चैप्टर आगे चलेगा आपको ये सारे सेल्स अंडरस्टैंड करने हैं। सिंपल केस, अगर आप अपने घर में ड्राई सेल लीजिए, स्टूडेंट ध्यान दीजिए मेरी तरफ, मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं कि कुछ हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो पाता है? क्योंकि इनमें जो केमिकल रिएक्शन अकर करता है, उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट की, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो हम अपने घर में ड्राई सेल्स यूज करते हैं, इन सेल्स के अंदर ऐसी ही रिएक्शंस अकर करती हैं। जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी मोबाइल की, इनमें भी सेल्स हैं, सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। इनमें ऐसी ही रिएक्शंस यूज होती हैं जो हम चैप्टर में आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं इसको सम अप करूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे बात की टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। इन सम केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड इन सम केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। द केमिकल रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ऐसी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ऐसी केमिकल रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू
इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। और याद रखिए, जिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिसिस, और जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इनको गैल्वेनिक रिएक्शंस बोलेंगे। एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड or in which electric energy is produced, this is called as electrochemistry। तो होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो हम इस तरह से भी इसको स्टेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study that how electric energy is converted into chemical energy and how chemical energy is converted into electrical energy। So this is electrochemistry। तो स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जस्ट बताया कि ये है क्या। दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे आगे प्रोसीड करेगा हम इलेक्ट्रोलिसिस भी अंडरस्टैंड करेंगे और केमिकल रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो आफ्टर दैट लेट्स अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स and electrolytic conductors, खासकर electrolytic conductors, क्योंकि इस चैप्टर में again and again, time and again we will talk about electrolytic conductors। हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बिटवीन छोटा मोटा डिफरेंशिएशन भी ले लेंगे। So what are conductors? क्या मेरे बताने की रिक्वायरमेंट है? The substances through which electric current can pass, they are conductors। Substances through which electric current can pass easily, they are called as conductors। तो बोर्ड पे देखिएगा, conductors, these are the substances through which electric current can pass easily, they are conductors। These conductors can be classified into two types। यहां electronic conductors and electrolytic conductors। So let us understand what are electronic conductors and what are electrolytic conductors। So first electronic conductors। Electronic conductors में generally metals included हैं, इसीलिए हम इनको मेटेलिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। और दोज कंडक्टर्स इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, ऐसे कंडक्टर्स जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में मेन एग्जांपल मेटल्स की है, ग्रेफाइट है। हालांकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में सबसे कॉमन और पॉपुलर एग्जांपल जो है वो मेटल्स की है। सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेटल कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स। तो मैंने आपसे कहा हमारे पास कंडक्टर है, हमने फाइंड आउट किया कि उस कंडक्टर का electrical conductivity is due to flow of electrons, that is electronic conductor। लेकिन अगर किसी कंडक्टर का electrical conductivity due to the movement of ions हो, that is electrolytic conductor। जैसे आप एग्जाम्पल लो, हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है किसी एसिड का,
एक्वा सोल्यूशन है बेस का, या एक्वा सोल्यूशन है साल्ट का, या इवन हमारे पास फ्यूज्ड साल्ट है। जब हम इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और कंडक्टर डीकंपोज ब्रेक कर जाता है। ऐसे कंडक्टर्स जिनमें से करंट पास करे और जो करंट पास करने पर डीकंपोज हो जाते हो इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ऐसे कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं। लेकिन ऐसे कंडक्टर्स जो करंट पास करने पर डीकंपोज ना होते हो, दे आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस है। जब मैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूं। तो 2 पॉइंट्स मैंने दोनों के बताए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दीज आर द कंडक्टर्स व्हिच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विदाउट डीकंपोजिशन। कोई मेटल लीजिए, उसमें से करंट पास कीजिए, मेटल में से करंट इजीली पास करेगी लेकिन मेटल डीकंपोज नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, electrolytic conductors are those conductors which decompose to ions, positive and negative ions, on passing electric current through them. तो ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास करने पर जो आयंस में ब्रेक हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और जो ब्रेक ना करे करंट पास करने पर वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में एग्जांपल मेटल्स, ग्रेफाइट्स एंड सर्टेन अदर मिनरल्स का दिया। और यहां पे जैसे मैंने बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एक्वा सॉल्यूशंस है एसिड्स के, बेसिस के, साल्ट्स के और फ्यूज्ड साल्ट्स के, सब पढ़े हैं स्टूडेंट आपने। सेकंड पॉइंट में मैंने आपसे बात कर ली कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ मैटर की बात करते हैं। आपको मालूम है क्लास 11th में आप स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स मैटर को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारी लेटेस्ट स्टडीज में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, अगर इनकी कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ मैटर, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो हैं, जब उनमें से करंट का फ्लो होता है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर, क्योंकि जब करंट पास करेगी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इसका मतलब मैटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात होगी, जब उसमें से करंट पास करेगी तो करंट पास करेगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, और आयंस मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जब करंट पास करेगी वहां फ्लो ऑफ मैटर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में से जब करंट पास करेगी तो वहां फ्लो ऑफ मैटर नहीं होगा। तो आई से दैट यहां पे देख, देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स व्हेन द करंट इज पास्ड, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में देयर इज फ्लो ऑफ मैटर, क्योंकि करंट पास हो रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, और आयंस आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मैटर। अगर स्टूडेंट यहां देखें, अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि दोनों कंडक्टर्स जो हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, ये स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? फिर से क्लास 11th, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं मेनली इसमें मेटल्स हैं, और आप जानते हैं मेटल्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड कर्नल्स, KERNALS कर्नल्स। होप करता हूं आपको याद रहा होगा कि मेटल जो है
that is made of positively charged kernels. जैसे जैसे आप किसी मेटल का टेम्परेचर राइज करोगे, मेटल का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो मेटल के लैटिस में कर्नल्स हैं वो उतना ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. हायर द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द वाइब्रेशंस ऑफ द कर्नल्स इनसाइड द मेटल. और जितनी ज्यादा कर्नल्स की वाइब्रेशंस होंगी वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में उतना ज्यादा ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंडर करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. होप करता हूं आपको समझ आया होगा कि मेटल का जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, वैसे वैसे अंदर कर्नल्स का वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी. वाइब्रेटिंग कर्नल्स जो होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंसेस क्रिएट करेंगे इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो रेजिस्ट होगा, वो हिंडर होगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. तो कंक्लूजन, मेटल के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. क्यों? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतनी क्विकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उतनी क्विकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे और उतनी ही क्विकली वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टूवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स. उतनी जल्दी होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और उतना हायर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटालिक कंडक्टर्स, उनका कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यही मैंने बात की थी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और यहां कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आयंस का मूवमेंट फास्टर हो जाएगा टूवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स और फास्टर अकर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. अब हम ये स्टडी करेंगे लास्ट पॉइंट कि इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से कंडक्टर के केस में, ये कंडक्टर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किस रीजन से क्रिएट होगी. मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आप पढ़ चुके हैं, जो कर्नल्स होते हैं यही वाइब्रेट करते हैं एंड दीज वाइब्रेटिंग कर्नल्स क्रिएट हिंड्रेंसेस इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट क्रिएट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. तो मेटालिक कंडक्टर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द कर्नल्स. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी. 11th में पढ़ा था आपने विस्कोसिटी एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस. हाइड्रेशन ऑफ आयंस भी आप क्लास 12th के सोल्यूशन में पढ़ चुके हैं. जब एक आयन को वाटर और जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं सराउंड करते हैं और आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ आयंस. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में हाइड्रेशन ऑफ आयंस एंड विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये दो फैक्टर्स हैं जो मेनली अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. तो यही मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स और यहां पर रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू विस्कोसिटी, हाइड्रेशन ऑफ आयंस एटसेट्रा. इस तरह से मैंने आपसे कहा जो सब्सटेंसेस में से इजीली करंट पास कर जाए दे आर
कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डू नॉट डिकम्पोज व्हेन द करंट इज पास्ड, whereas electrolytic conductors, electrolytes, they decompose when the current is passed। तो हमने इनका डिस्कशन भी किया और अल्टीमेटली एक कंपैरिजन भी हो गया बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, आई से मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और जब मैं पूरा लेक्चर स्टूडेंट फिनिश करूंगा तो आप स्क्रीनशॉट जब लास्ट में लेंगे तो तब आप ये डिफरेंस भी नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है। तो ये हमने स्टडी किया, यहां तक करना, ये सब मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही कवर करूंगा। और अब हम रियल फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये पहला टॉपिक है तो अभी तक क्या करवाया आपने। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन था पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, तो कईयों में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इंट्रोडक्शन था, उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही स्टडी की जाती है। नंबर 2 मैंने बताया कंडक्टर्स, और दो टाइप के कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, उनका डिटेल्सली कंपेयर किया। एंड फर्स्ट टॉपिक, ऑल्दो इट्स अ स्मॉल वन, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, क्या है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड, बेस, सॉल्ट, फ्यूज्ड सॉल्ट, उसी को मैं कह रहा हूं कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करने के लिए टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस। लगता नहीं आपने अंडरस्टैंड किया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस is the term which is commonly used to express the resistance of a solution. Solution means इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और हमें उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बात करनी है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को ही एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जनरली वी डू नॉट टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेरा पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टर्म को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यही स्टूडेंट मैंने यहां लिखा है कंडक्टेंस। अगर आप यहां आए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इट is the term commonly used to express the resistance of a electrolytic solution। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के रेजिस्टेंसेस को रेजिस्टेंस की फॉर्म में स्टडी नहीं किया जाता है, उनके रेजिस्टेंस को स्टडी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टेंस इज द मेजर मीन्स हाउ मच of ease with which electric current flows through a conductor। इस सेकंड पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है आपको। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज द
measure of ease with which the electric current passes through a solution means एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना इजीली, विद हाउ मच ईज इलेक्ट्रिक करंट उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से पास कर रही है। इसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे, जो टर्म हमें इंडिकेट करेगा कि कितना इजीली या कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से पास कर पा रहा है, that term which is used to find out the electric current passing through the electrolytic solution, that term is actually called as electrolytic conductance. तो मैं सेकंड पॉइंट को रिपीट करूंगा कि इट इज द मेजर ऑफ ease with which electric current flows through a conductor. और स्टूडेंट अब मैं कंडक्टेंस को डिफाइन करूंगा। 10 से 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है पूरा नहीं। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, आता है आपको ये ओम्स लॉ, क्लास 10th में आपने स्टडी किया था, और ये आपको रिलेशन प्रोवाइड करता है ओम्स लॉ कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर का कम होगा रेजिस्टेंस तो नेचुरली, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टर के पास पावर, प्रॉपर्टी कम है करंट को अपोज करने की। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है उस कंडक्टर में से ज्यादा करंट पास कर पाएगी, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से दैट कंडक्टर विल हैव वेरी हाई प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी हाई है उसमें से कम करंट फ्लो कर पाएगी। तो ये तो मालूम है ना कि इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor is always inversely proportional to the resistance of the conductor. Who says that? Ohm's law. इसका मीनिंग क्या हुआ? सेम पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी एप्लीकेबल है। इफ वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोलिटिक of high electric resistance, I repeat, if we have इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें से कम करंट पास कर पाएगी, इजीली करंट उसमें से पास नहीं कर पाएगी। और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस काफी लो होगा तो फिर उसमें से बहुत इजीली काफी ज्यादा करंट उसमें से पास कर पाएगी। यहां से हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये है राइट डेफिनेशन स्टूडेंट। तो यहां देखिएगा कंडक्टेंस, ये थर्ड पॉइंट, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अंडरस्टैंड किया? एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, उस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी दी कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मींस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का अगर हायर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो लो होगी कंडक्टेंस, कम करंट पास कर पाएगी। अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का अगर लो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो हाई होगी कंडक्टेंस, मतलब उसमें से ज्यादा करंट पास कर पाएगी। सो वंस अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और कंडक्टर हमारा यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। खुद करता हूं, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक
कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसमें से करंट पास करेगी, इसका मतलब उतना ज्यादा वैल्यू होगा। स्टूडेंट पर रिपीट कर देता हूं, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैं दोबारा बोल रहा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतनी कम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर पाएगी और उतनी लो वैल्यू होगी कंडक्टेंस की। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बहुत लो है रेजिस्टेंस, उसमें से करंट बहुत ज्यादा पास कर पाएगी और ऐसी कंडीशन में हाई वैल्यू मिलेगी आपको कंडक्टेंस की। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम जनरली सी और समटाइम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सी इज इक्वल टू 1/R। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। होप करता हूं आप 12th वाले हैं। 1/R कैसे हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस तरह कंडक्टेंस C इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, meaning higher the resistance, lower will be the conductance. Lower the resistance, higher will be the conductance. और स्टूडेंट अब हम यूनिट्स निकाल लेंगे। एक यूनिट तो आपको आता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है O। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो C इज इक्वल टू 1/R और R मींस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? O। सो C इज इक्वल टू 1/O। और जब आप इसी ओम को स्टूडेंट वहां ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ओम पावर -1, यानी कि ओम इनवर्स। तो इसको ध्यान देना है, इस चैप्टर में नोट करने वाले पॉइंट हैं। नंबर 1, कंडक्टेंस का जो यूनिट मैंने आपको बताया दैट इज पर ओम। इसको आप पर ओम बोल सकते हैं, इसको आप ओम इनवर्स बोल सकते हैं, इसको आप ओम रेज टू पावर -1 बोल सकते हैं। कुछ अदर यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो आपको लर्न करना पड़ेंगे। अदर यूनिट्स, मोह, MHO, मोह, ये भी कंडक्टेंस का यूनिट है। एक और यूनिट भी है साइंटिस्ट के नाम से सीमेंस, सीमेंस S, याद रखिएगा। एंड 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1 पर O, याद रखिएगा। 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1 पर O। और अगर नहीं समझ आया तो अब समझते हैं स्टूडेंट। सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है। सपोज इफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, इट्स कंडक्टेंस विल बी, कितना कंडक्टेंस होगा इसका? 1/R तो 1/R, अगर रेजिस्टेंस 20 है 1/20। यूनिट क्या है? पर ओम, तो ये यूनिट होगा उसका पर ओम। अगर इसको मोह में लेना है तो 1/20 मोह, और इसको अगर सीमेंस में लेना है तो 1/20 सीमेंस। अभी तो सिंपल लग रहा है, आगे कंफ्यूजन पैदा होगा अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आएगा, तो वहां पे यूनिट्स में थोड़ा सा चेंजेस आएंगी और आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। तो कंडक्टेंस क्या है? सिंपल, बाकी बातें छोड़िए। रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सिंबल CRG, फार्मूला C इज इक्वल टू 1/R, यूनिट्स ओम इनवर्स, अदर यूनिट्स मोह, अदर यूनिट्स सीमेंस। दैट्स कंडक्टेंस। न्यू लेसन के अंदर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस लूंगा, और जैसा हर बार कहता हूं, अच्छी तरह से वीडियो देखना होता है, 2-3 बार तो देखना होगा ताकि आप अच्छी तरह से थिंग्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ मेमोराइज भी कर सकें। तो स्क्रीनशॉट लें आप। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।